Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the fifth lecture of course titled Introduction to Special Theory of Relativity. In this lecture, we discuss the following topics: transformation law for velocities and transformation law for acceleration. ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेलोसिटीज में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम one frame of reference to another frame of reference. और सिमिलर रिजल्ट्स हम एक्सेलरेशन के लिए भी ड्राइव करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेलोसिटीज. We know that rate of change of displacement is velocity. Here we consider the motion of the particle whose components are observed in frame S are u1, u2, u3, which we label as dx over dt, dy over dt and dz over dt. Similarly, the components observed of the same particle in frame S dash are u1 prime, u2 prime and u3 primes. Since frame S is at rest and frame S dash is moving with uniform velocity in the positive x-axis, therefore we relate the coordinate transformation of both the frame S and S dash through Laurent transformation, which are given by t prime is equal to beta into t minus vx over c square. Here beta is equal to 1 over 1 minus v square over c square, where v is the velocity of the frame S dash with which it moves along x-axis. Similarly, we have results x prime is equal to beta into x minus vt, and since S dash only moves along x-axis, therefore the components y and z will remain same, that is y prime is equal to y and z prime is equal to z. चूंकि हम निकालना चाह रहे हैं u1 prime in terms of u1, u2 prime in terms of u2 and u3 prime in terms of u3, और हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी है. therefore we need to calculate dx prime over dt prime. so इनके हम डिफरेंशियल ले रहे हैं. dt prime is equal to beta into dt minus v dx over c square, and dx prime is equal to beta into dx minus vt. So u1 prime can be calculated by dividing dx prime over dt prime. यहाँ पे बीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और हम u1 प्राइम को u1 से रिलेट करना चाहते हैं. therefore we divide numerator and denominator by dt, so that we have dx over dt minus v over 1 minus 1 over c square into v into dx over dt. dx over dt को हमने लेबल किया है u1 के साथ. therefore
पहला कंपोनेंट हमारा फ्रेम एस डैश और एस में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ वो इक्वेशन 1 में हम देख सकते हैं। दैट इज u1 प्राइम इज इक्वल टू u1 माइनस v ओवर 1 माइनस u1 v ओवर c स्क्वेयर। सो अगर हम इसको देखना चाहते हैं क्या ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ट्रांसफर हो सकता है, तो हम ये कंडीशन इम्पोज करते हैं दैट v इज very less than c, so that the factor v over c square will be negligible. So we have only u1 minus v। चूंकि फ्रेम s डैश जो है वो मूव कर रहा है only along x axis, therefore चेंज जो आएगा वो only along x axis आएगा, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि u1 प्राइम जो है वो u1 माइनस v रह जाएगा। Similarly, we can relate u2 prime with u2, that is dy prime over dt prime is equal to dy over beta into dt minus v dx over c square. Similarly, we divide numerator and denominator by dt, so that we have a relation given in equation 2 which relates the velocity components along y-axis. And similar results we can derive for velocity components along z-axis. One can see that velocity components u2 and u3 transverse to the direction of motion of the frame s dash are affected by the transformation. Transverse to the direction of motion क्या है? अगर आपका कोई पार्टिकल along x एक्सिस मूव कर रहा है, उसकी ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो along y एक्सिस और z एक्सिस होगी। Simply we can say the perpendicular direction to the direction of motion of a particle are called transverse directions. So similarly, जैसे हमने v1 u1 को रिलेट किया था इन न्यूटोनियन केस, हम u2 और u3 को भी चेक कर सकते हैं कि वेदर क्या ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रिड्यूस होते हैं। सो हम अगेन वही कंडीशन इम्पोज करते हैं दैट v इज वेरी लेस देन c, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश है। सो इन दैट केस u1 v ओवर c स्क्वेयर ये फैक्टर निगलेक्ट होगा। सिमिलरली बीटा जो है वो डिफाइंड है 1 ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, therefore beta will also approach to 1, so we only left with u3 prime is equal to u3 and u2 prime is equal to u2. So we can say in the limiting case the results of special relativity reduce to Newtonian mechanics. Next हम अनप्राइम वेलोसिटी कंपोनेंट्स को प्राइम वेलोसिटी कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, और हम वही फैक्ट यूज करते हैं जो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को प्राइम कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करते हुए लिया था। दैट इज we just simple have to replace the unprime components by prime components and prime components by unprime components and v by minus v। जैसा कि यहाँ पे आपको ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, जस्ट हमने रिप्लेस किया है u1 प्राइम को u1 से
और u1 को u1 प्राइम से और v को माइनस v से, तो हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेलोसिटीज आ जाएगा। एक्सेलरेशन इन स्पेशल रिलेटिविटी, जैसे कि हमने डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होगा। और सिमिलर टू वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को आपस में रिलेट करना चाह रहे हैं और उनका रिलेशन देखना चाहेंगे कि A1 प्राइम के साथ कैसे रिलेट होगा, A2 प्राइम का A2 के साथ क्या रिलेशन होगा, और A3 प्राइम का A3 के साथ क्या रिलेशन होगा। और सिमिलर टू वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हम A1 को डिफाइन कर रहे हैं एज du1 over dt, A2 will be du2 over dt, and A3 is du3 over dt. सो हमें यहाँ पे डिफरेंशियल चाहिए du1 का, और dt का तो अभी हमने डिफरेंशियल देखा है, जो हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी उसको निकालते हुए यूज किया है। सो यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेते हैं u1 का, और u1 जो है वो इक्वल है u1 प्राइम प्लस v over 1 plus u1 prime v over c square. Remember, v is the velocity of the frame s, which moves along negative x-axis with velocity v, और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। Similarly, c is the speed of light, which is also constant. So only जो वेरिएबल है यहाँ पे वो u1 प्राइम है। Therefore, जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो v और c जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो इसका डिफरेंशियल देख रहे हैं कि वो du1 प्राइम ओवर 1 प्लस u1 प्राइम v ओवर c स्क्वेयर माइनस u1 प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस u1 प्राइम v ओवर c स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू v ओवर c स्क्वेयर du1 प्राइम। जस्ट क्वेश्चन लॉ हमने यूज किया यहाँ पे, क्वेश्चन लॉ फॉर डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास du1 प्राइम du1 के साथ रिलेट हो गया, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 1 ओवर बीटा स्क्वेयर इंटू du1 प्राइम ओवर 1 प्लस u1 प्राइम v ओवर c स्क्वेयर होल स्क्वेयर। और बीटा स्क्वेयर अगेन वी हैव, जैसे बीटा की वैल्यू हमने ली थी 1 ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, तो बीटा स्क्वेयर यहाँ पे होगा 1 ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर c स्क्वेयर। नो, t हमारे पास डिफाइन है इज इक्वल टू बीटा इंटू टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम वी ओवर सी स्क्वेयर। सिमिलरली इसका हम डिफरेंशियल लेते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट कि हम डी एक्स प्राइम और डी टी प्राइम को इन टर्म्स ऑफ u1 लिख सकें। तो हमने यहाँ से डी टी प्राइम को कॉमन लिया, सो दैट वी हैव डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम को हम u1 प्राइम के साथ रिप्लेस कर सकें। ना पिछली स्लाइड पे हमने डिफरेंशियल ले लिया था du1 का, और यहाँ पे dt हमारे पास डिफरेंशियल हमने ले चुके हैं। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, एक बीटा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, और du1 प्राइम ओवर dt प्राइम को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई a1 प्राइम।
और लेफ्ट हैंड साइड को du1/dt को हम a1 लिख सकते हैं। देयरफॉर a1 और a1 प्राइम आपस में रिलेट हो गया विद द फैक्टर 1/बीटा क्यूब इंटू 1 प्लस u1 प्राइम v/c² होल क्यूब। सिमिलरली हम u2 का डिफरेंशियल लेंगे और dt का डिफरेंशियल जो हमारा पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a2 का a2 प्राइम के साथ रिलेशन आ जाएगा, लेकिन a1 से डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें a1 भी इन्वॉल्व है। सो वी कैन से a2 के अंदर a2 प्राइम भी इन्वॉल्व है और a1 प्राइम भी इन्वॉल्व है। जैसे हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि v2 और u2 और u3 ऑलमोस्ट सिमिलर उनके रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी a2 और a3 के रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन जो हम ले रहे हैं वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, देयरफॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स along y-axis and z-axis are similar। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स भी रिड्यूस होते हैं इनटू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अगेन हम वही कंडीशन इम्पोज करेंगे, दैट इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज वेरी लेस देन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगेन ये फैक्टर्स सारे निगलेक्ट हो जाएंगे और आप देखेंगे a2 जो है वो a2 प्राइम रह जाएगा और a3 जो है वो ओनली a3 प्राइम के साथ सिर्फ रिलेट होगा। नो अब हम इस पोजीशन में है कि हम अपने रिजल्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं और इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। आपको यहाँ पे 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। पहले कॉलम में पोजीशन है, दूसरे कॉलम में वेलोसिटी है, तीसरे कॉलम में टाइम है और चौथे कॉलम में एक्सेलरेशन। हमने जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव की थी उसमें टाइम जो था हमने कहा था कि वो एब्सोल्यूट है। वंस टाइम एब्सोल्यूट है तो एक्सेलरेशन भी एब्सोल्यूट होगा। और ये हमने जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव किया था तो उसको भी हमने ये शो किया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड लॉ of motion is only about acceleration. So we can say in terms of Newtonian mechanics, पोजीशन सिर्फ रिलेटिव होती है, जैसा कि हमने उसमें देखा था कि अगर आपका फ्रेम एस डैश अलॉन्ग एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है तो ओनली जो चेंज आता है वो अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा, दैट इज एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस पी टी। और इसी को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलती है, सो वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। सो इसी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो पोजीशन और वेलोसिटी के लिए रिलेटिव आएंगे, बट टाइम और एक्सेलरेशन के लिए एब्सोल्यूट आएंगे। और यही रिजल्ट्स जब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव किए उसमें टाइम भी आपका रिलेटिव आया, यानी टाइम के अंदर भी चेंज आई। सो देयरफॉर उस केस में पोजीशन भी रिलेटिव है, वेलोसिटी भी रिलेटिव है और टाइम भी रिलेटिव। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन जो है वो एब्सोल्यूट है और स्पेशल और जनरल में सिर्फ एक ही फर्क है कि जनरल रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन भी रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाती है, वो एब्सोल्यूट नहीं रहती। सो ये एक समरी है जो न्यूटोनियन, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को आपस में रिलेट करती है।